Nawaz Sharif had many successes and there were few failures of Nawaz Sharif as well. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा टॉपिक है हमारा दिस इज नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के टॉपिक में वी हैव वी हैव सक्सेसेस एंड फेलियर्स बेटा नवाज शरीफ इन हिज फर्स्ट टर्म the most important thing he did was national reconstruction program. National reconstruction program. Now, if we talk about national reconstruction program, the name itself shows he wanted to reconstruct, rebuild the economic system of Pakistan. He rebuilt economic system of Pakistan. Economic system of Pakistan. Clear, beta? Is it clear to all of you? Nawaz Sharif reconstruct the economic system of Pakistan, like allowed massive privatization. Massive privatization. Beta, what is the meaning of the word privatization? What do you understand by the term privatization? Can anyone tell? Opposite of nationalization. Opposite कि of nationalization? government Yes. assets और private hands में डाल दे. Hmm. What is the recent example in Pakistan जो PI प्राइवेटाइज PI है? Very good. So प्राइवेटाइज किया इसने. Therefore, many industries of Bhutto, Z.A. Bhutto era, Z.A. Bhutto era were handed over to private investors. Clear? What was the benefit of this thing? अब मैं इधर इधर आपको एनालिसिस करना भी सिखा सकता हूँ, ठीक है? अब इस पॉइंट से हमें फायदा क्या हुआ? You need to write that thing. Hence, Nawaz was successful in uplifting economic standards of Pakistan. ठीक है बेटा कि नवाज शरीफ जो है उसने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान के अपलिफ्ट किए which built Pakistan's economy. Is it clear बेटा? So this is the thing you people need to know कि पाकिस्तान को किस तरीके से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया नवाज शरीफ ने. That was the main success of it. जी बेटा, is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes, no? जी बेटा. सो पाकिस्तान को बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट करने में नवाज शरीफ played an active role. That was the first success of Nawaz Sharif. But a second success of Nawaz Sharif was he also worked on resolving
provincial disputes. Provincial disputes. Beta, Pakistan was a country where there were so many provincial disputes. पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा disputes थे. For example, like he resolved, या he helped in signing off water accord. What was signed by government of Pakistan? Water accord. पाकिस्तान में वाटर का इशू हमेशा से रहा है. पाकिस्तान में प्रोविंशियल डिस्प्यूट क्या रहा है वाटर का? Can anyone tell? Can anyone tell what was the provincial dispute of water? पंजाब को ज्यादा मिलता है, केपी के और सिंध को कम. That is And always. dispute over Kalabagh Dam. And it is a dispute over Kalabagh Dam. तो पाकिस्तान में पहली दफा क्या साइन किया गया बेटा? वाटर accord was signed among provinces. मतलब लिमिट फिक्स की गई कि which province would use which amount of water या how much water a province would use. Clear? Further, for fair economic distribution, National Finance Commission was signed. National Finance Commission was signed. बेटा पाकिस्तान के अंदर हर प्रोविंस डिफरेंट वे में पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है. पंजाब एग्रीकल्चर से करता है, सिंध माइनिंग और एग्रीकल्चर दोनों से करता है, बलूचिस्तान प्योरली माइनिंग से करता है, केपीके टूरिज्म से करता है. ऐसा ही है ना? तो हर प्रोविंस को कितना फाइनेंस में से शेयर मिलेगा, हाउ मच शेयर वुड बी गिवन टू ए प्रोविंस, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ नवाज शरीफ. तो both these steps, hence both these steps resolved provincial disputes and brought unity. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? जी बेटा, पाकिस्तान के अंदर these were the important things which were introduced in the time period of Nawaz Sharif. जी बेटा, any question? Okay, now we are coming towards the third success of Nawaz Sharif. Nawaz Sharif started infrastructure projects as well. Infrastructure projects too. Which infrastructure projects were started by Nawaz Sharif? Number one, like motorway M2. So Ghazi Barotha hydropower plant. Very good. Ghazi Barotha hydel power plant. Very good. इसके अलावा सर और गवादर मिनी पोर्ट. Yes बेटा, very good. Gwadar mini port and Gwadar mini port बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंट्री में बेहतर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों तो इसका फायदा क्या होता है? व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग? सर ट्रेड इंक्रीज होगी. सिर्फ ट्रेड? सर और टूरिस्ट आ सकते हैं. ट्रेड भी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है. वेरी गुड. क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी इंप्रूव्ड बाय more employment opportunities, more better facilities. Clear? Hence, these steps
enhanced employment and improved quality of life in Pakistan. Very good. Quality of life in Pakistan. जी बेटा, online students. Is it clear, everyone? Now, how many successes you people have written for Nawaz Sharif? 3 successes are sufficient because सक्सेसेस पे इतना क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है? सक्सेस वाले क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते. दोज हु ज्वाइन द क्लास लेट, आई एम जस्ट शोइंग यू कि वी आर डूइंग नवाज शरीफ की फर्स्ट टर्म के वी हैव डन विद द सक्सेसेस एंड द सर इसकी हुकूमत मोस्टली फेलियर नहीं थी? बिल्कुल बेटा, हर एक की मोस्टली फेलियर्स हैं. इन द लास्ट 10 years most of the questions in which exam in exam can be given related to the failure and dismissal of these people. Clear? Yes. जी बेटा, is it clear to all of you? Yes. Now come to the failures. Just like the failure of Benazir Bhutto, कुछ common points भी थे. Do you know what are the common points Sir, of law and order situation और corruption charges. Very good. पाकिस्तान के अंदर बेटा, in Pakistan, the biggest problem was the problem of law and order. So the first failure is poor law and order, poor law and order due to two events, due to two things. And drug trafficking. Very good. Due to Kalashnikov culture and drug trafficking. Is it clear, everyone? So what was the failure of Nawaz Sharif in it? इससे नवाज शरीफ का क्या है कि नवाज was however Unpopularity. yes, however Nawaz was unable to control. Nawaz was unable to control and it enhanced unpopularity of Nawaz. Ye online students beta, is it clear? Yes, sir. Okay, now come to the second point. There is one important point which is also common with like just Benazir Bhutto's time period. I have told you already. Nawaz Sharif और Benazir में 2 common points बहुत ज्यादा important है. Loss of US aid. Loss of US aid reduced financial and economic development it also caused inflation and unemployment due to little investment in Pakistan. क्लियर बेटा? ये भी एक है. तो इससे नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ा? What was the problem for Nawaz in this? Hence he was unable to control economic problems. Is it clear to all of you?
जी बेटा, आफ्टर दैट नवाज शरीफ हो और स्कैंडल्स ना हो, ये हो नहीं. देयर वर मल्टीपल स्कैंडल्स इन द टाइम पीरियड ऑफ नवाज शरीफ. बेटा, देयर वर मल्टीपल स्कैंडल्स in the time period of Nawaz Sharif. सर एक बीसीसीआई स्कैंडल. Yes, beta. I'm just highlighting the scandals. These scandals are more important because you need to keep in mind that these scandals can be given as the key reason. The first scandal, सर BCCI. Yes, beta. सर हम सक्सेसेस में ये लिख सकते हैं कि ये नवाज शरीफ ने जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे. वो अगली टर्म में है बेटा, वो 1998 में है. क्लियर? सर स्कैंडल की स्पेलिंग DLE होता है या DAL होता है? सर DAL. DL होता है. Okay. Okay. So BCCI bank scandal. Now, Bank of Commerce and Credit International, ये BCCI की full form भी है बेटा. What is the full form of BCCI? Bank of Commerce and Credit International was famous bank of Pakistan. Yes, बेटा. सर इसको वो आगा हसन अब्दी ने खोला था. जी, Switzerland आगा में. हसन अफंदी ने खोला था. जी बेटा. This bank crashed and बैंक जो है वो भी बैंकरप्ट हो गया इसके टाइम पीरियड में. ठीक है. It crashed, which later on, सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिट किया था तो उसमें नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली का नाम आया था. जी बेटा, later on it proved, which later on proved that bank crashed due to excessive loans to the crashed due to excessive loans to the influential families. Clear बेटा? Like नवाज एंड एलाइस. तो इसका नवाज शरीफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? What was the impact on Nawaz Sharif? Why it was cause of dismissal of Nawaz? Hence, Unpopularity. yes, hence it brought unpopularity to थी and brought unpopularity and economic and investment issues in Pakistan. एक तो नवाज शरीफ के लिए ये अनपॉपुलैरिटी थी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट इशू इंक्रीज. अब बेटा, फॉर इंस्टेंस मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं और वो बैंक क्रैश कर जाए, मेरा इकोनॉमिक लॉस हो जाए, तो क्या मैं कभी जिंदगी में दोबारा बैंक्स में पैसे रखूंगा? नहीं. तो दैट हैपेंड कि पीपल हु हैड मनी इन दिस बैंक, दुनिया का बेटा ये टॉप बैंक्स में आता था, एशिया में ये टॉप बैंक्स में आता था. इट वाज सर दुनिया का 7th लार्जेस्ट बैंक हो गया था उस टाइम. 8th लार्जेस्ट बैंक बनता था ये. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक हो गया बेटा, ये भी आ गया इसमें. फिर फर्दर नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में देयर वाज अनदर स्कैंडल, that another issue, that was cooperative society scandal. Cooperative societies scandal. Now, these were low income societies. These societies were established to help low income people. Is it clear beta? These societies were established to help low income people and
many poor people invested to get cheap housing. However, cooperative societies got bankrupt. Cooperative, सर yes बेटा, सर ये जो अब्दी था इसने यूबीएल इसी ने खोला था ना? जी हसन अफंदी की बात कर रहे हैं? यस सर, जो बीसीसीआई का ओनर था। वो पहले उसके शेयर्स थे, कुछ कंप्लीटली ओनर नहीं था, वो हबीब ग्रुप वाले खुद उसके ओनर थे। सही है सर। However, cooperative societies got bankrupt and 70,000 people lost investment. बेटा, you need to know कि cooperative society name itself shows that cooperative society का नाम ही हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, ये लोगों की वेलफेयर के लिए थी। क्लियर? However, later it proved that income of societies कहां पे यूज हुई थी? Income of societies was used in इत्फाक फाउंड्री। और इत्फाक फाउंड्री किसकी है? आज भी ये पाकिस्तान की सर, सबसे नवाज बड़ी शरीफ। स्टील का काम है, ये स्टील का काम करते हैं, इत्फाक फाउंड्री ऑफ नवाज फैमिली। अब लोगों से पैसे लिए, सारी इन्वेस्टमेंट कहां पे कर दी? वेयर ही इन्वेस्टेड इन हिज पर्सनल फैमिली बिजनेस। तो अब मुझे बताएं, इससे नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? उसका इमेज डाउन हुआ इस चीज से। नेक्स्ट बेटा, another important point in Nawaz Sharif's failure was yellow cab scheme. Yellow cab scheme. बेटा, overall it was a big failure, लेकिन इसका short term benefit भी एक था कि many poor people got source of income या got source of employment. येलो कैब क्यों देते हैं? मतलब आजकल ये मरियम नवाज ने भी ई टैक्सीज निकाली हैं, आपको पता होगा मरियम नवाज की ई टैक्सीज। ई टैक्सीज जो है वो मरियम नवाज की तरफ से आई हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान के अंदर इसमें भाई मरियम, ये आजकल पाकिस्तान में काफी पॉपुलर स्कीम है। लुक एट दिस वन, ये हमें नजर आ रही, ठीक है मैडम। अब ये ई टैक्सीज जो हैं, ये कहाँ पे किसने स्टार्ट की? और ये ई टैक्सीज जो हैं, ये इस तरह नवाज शरीफ के बेनजीर के फादर ने, बेनजीर कह रहा हूँ, सॉरी, मरियम नवाज के फादर ने ये येलो कैब स्कीम इंट्रोड्यूस की। मेनी पुअर पीपल वर गिवन cabs on low investment. Many poor people were given cabs. However, people did not return in installments, and it brought economic burden on government. बेटा, जब बैंक को आप पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर
तो कौन फिर पे करेगा आपकी तरफ से? हु विल पे टू द बैंक्स? गवर्नमेंट खुद पे करेगी। तो नवाज शरीफ के लिए there was another economic problem and Nawaz Sharif could not control the economic conditions and he was unable to resolve the economic problems. That is how Nawaz Sharif became unpopular. Is it clear, beta? Is it clear, beta? सर ये कैब से क्या मतलब? कैब से क्या मतलब है बेटा? कैब्स क्या होती हैं? ये टैक्सीज वगैरह नहीं, जो टैक्सी वगैरह होती है, कैब्स, अच्छा सर, ओके ओके। ये सर कैब। जी बेटा। सर इसमें ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, वो जो डेवो रेसर कार आई थी उसमें हम्म। सर, वो उन्होंने अपने मतलब नेपोटिज्म के चार्जेस लगे थे नवाज शरीफ पे। बिल्कुल, वो भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत माइनर सी चीज थी। ये मेन इशू इस पे ये हुआ था कि पीपल दे डिड नॉट गिव द इंस्टॉलमेंट्स टू द बैंक्स, और लोगों ने टैक्सी या ये चीजें तो ले ली, इंस्टॉलमेंट्स पे ले ली ये चीजें, बट दे नेवर रिटर्न्ड द ड्यू शेयर टू द banks, and after that government was supposed to pay, and Nawaz Sharif government had very poor economic resources to pay the banks, and it collapsed the economy basically. Clear? यस सर, सही। जी बेटा। सर Now we आपने ये was used इत्तेफाक के बाद क्या लिखा हुआ है? इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक फाउंड्री, ठीक है, इत्तेफाक फाउंड्री है बेटा जी। इसके अलावा नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में और क्या फेलियर था? वी हैव अनदर फेलियर, like another failure of Nawaz Sharif's time period was failure to implement शरीयत बिल। कौन सा बिल बेटा? नवाज शरीफ was failed to implement शरीयत बिल। क्लियर? लाइक या शरीयत बिल क्या होता है बेटा? शरीयत क्या होती है? व्हाट इज शरीयत? कैन एनीवन टेल? इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ। नवाज शरीफ ने इंप्लीमेंट करना था इस्लामिक लॉ। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामिक लॉ को पास किया, एंड दैट इस्लामिक लॉ वाज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ ज़ियाउल हक़्स पॉलिसीज। क्लियर? एज he promised with Islamic political parties to implement शरीयत बिल। जब ये फेल हुआ, नवाज शरीफ ने इस्लामिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो फिर नवाज शरीफ की किस में पॉपुलैरिटी खत्म हुई? हेंस नवाज failed to get support of Islamic political parties due to its failure. Failed to get support of Islamic political parties. एंड फाइनली नवाज शरीफ के खिलाफ जितनी भी सारी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक्चुअली नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग की बेस पे इलेक्शन नहीं जीता था। बेनजीर को इलेक्शन जो हराया था, उसने इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद का लीडर था नवाज शरीफ। मैं इधर ना एक वर्ड लिखूंगा, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। मैं इधर एक वर्ड लिखूंगा, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। ये देखें, जब मैं इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम लिखूंगा तो यू विल फाइंड नवाज शरीफ सबसे पहले। ये मौलवी साहब जो है, ये जिस तरह हमारे जैसे लोग नमाज रमजान में जो हरकतें करते हैं ना, टोपियां शोपियां पहन के, नवाज शरीफ साहब भी स्कैंडल बनवाने के बाद ये नमाज शमाज पढ़ने लग गया। ठीक है सर, ये साथ में रफीक तारड़ नहीं है जो जी जी, प्रेसिडेंट था? वो पीछे बैठा हुआ है। हाँ, वो पीछे बैठा हुआ है। वो दूसरी टर्म में प्रेसिडेंट बना था, फर्स्ट में नहीं। अच्छा, नवाज शरीफ जो है, ये जो है, ये वो तारड़ नहीं है, ये मुनव्वर हुसैन है, मुनव्वर हुसैन, ये और बंदा। अच्छा, नवाज शरीफ बेटा, ये इलेक्शंस, ये नवाज शरीफ का जो है वो
1980s के अंदर जो है वो बेनज़ीर के खिलाफ इसकी थी, ये इसका कार्ड वगैरह भी अभी पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, यू कैन फाइंड। तो नवाज शरीफ ने सारी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के एग्रीमेंट किया था, क्लियर। इसने डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, इसने जमहूरी इत्तेहाद बनाया कि जी बेनज़ीर की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए। इसमें लीडर कौन था? नवाज शरीफ साहब इसके लीडर थे। और इसमें टोटल आपको यू कैन सी हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन दिस पार्टी फ्लैग। सर 9 पार्टीज ने अलायंस बनाई थी। जी बेटा, हाउ मेनी स्टार्स? द स्टार्स शो दैट देयर वर 9 पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस अलायंस। सर इनका इंतखाबी निशान साइकिल का था ना? कोई और था इनका उस वक्त, अब पता नहीं क्या है। साइकिल नहीं था, कोई और था इसमें। अच्छा, अब ये 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके ये अलायंस बनाया था, क्लियर हो गया। अब ये सारी पार्टीज जब शरीयत बिल इसने इंप्लीमेंट नहीं किया तो नवाज शरीफ को कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट खत्म हुई? 8 पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट नवाज शरीफ से, 8 तो नहीं लेकिन 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट खत्म हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसके बाद जमात इस्लामी ने छोड़ दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने छोड़ दिया, क्लियर। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने छोड़ दिया, जमात मशाइख ने छोड़ दिया। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दीज पार्टीज लेफ्ट द गवर्नमेंट, क्लियर बेटा। लास्ट थिंग इज इशू विद इसहाक खान over appointment of Abdul Wahid Kakad as army chief. Nawaz wanted to appoint his army chief. Nawaz wanted to appoint his army chief while इसहाक खान ने कौन सी अमेंडमेंट यूज की बेटा? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसहाक खान यूज्ड वेरी used 8th amendment to dismiss Nawaz Sharif. 8th amendment to dismiss Nawaz. Now, tell me, which is the most important cause of dismissal? Issue with Ishaq Khan. Yes, issue with Ishaq Khan. शायद नवाज शरीफ चल ही जाता, ठीक है। 8th अमेंडमेंट ओवर कौन से चार्जेस लगाए नवाज शरीफ पे? ओवर करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लियर बेटा? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। ओके, अब हाउ मेनी रीजंस ऑफ डिसमिसल आर देयर? कितनी रीजंस हमने लिखी हैं डिसमिसल की, मतलब फेलियर की, नवाज शरीफ के फेलियर्स। ऑल द फेलियर्स बिकेम द कॉजेज ऑफ डिसमिसल। लेकिन जो आपने हर सूरत में करनी है, जिनको आपने नहीं छोड़ना, वो आपने ये वाला, ये इसको आपने किसी तरह नहीं छोड़ना। यू कैन नॉट लीव दिस वन, यू कैन नॉट लीव दिस वन, एंड यू कैन नॉट लीव दिस वन। ये वाले 4 रीजंस तो आपने मस्ट याद रखनी है ना, बिकॉज दीज रीजंस कैन बी गिवन एज अ की रीजन इन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ओके, यहां तक हमारा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अब इस पे 2 तरह के क्वेश्चंस नवाज शरीफ पे बन सकते हैं बेटा। अब इस पे नवाज शरीफ के टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन क्या होगा? was BCCI
BCCI scandal, the most important cause, of dismissal of Nawaz? G. Nawaz in 1993. Explain. So, beta, what were the other causes of dismissal of Nawaz? Yes, beta. Can anyone tell? What would be the structure of this answer? This question, इस question का answer structure क्या होगा? Can anyone tell? First paragraph will be on BCCI scandal, Very and good. then the link statement, Yes, very and- good. and then cooperative society scandal, Very good. and then any three more. Yellow like- cap scheme, Kalashnikov culture, loss of US aid. You can write any four others. Clear? G. Online students. Is it clear to all of you? Yes. Yes, sir. Okay, जी. Excuse इसमें me, sir. ये Yes. किस तरह से करेंगे ना कि hence it led to the failure of Nawaz Sharif. BCCI कैसे गया था फेलियर ऑफ नवाज शरीफ की तरफ? फेलियर के एंड पे हमने एनालिसिस देना होगा ना, तो उसमें हम यही लिखेंगे hence it led to the failure of Nawaz Sharif. Hence it led to the failure and later it led towards the dismissal, but you have to prove that कि मतलब कैसे गया था वो फेलियर की तरफ कि when people started lack of investment, people lost trust on banking system. ये आपने उसकी रीजन जस्टिफिकेशन उसको कहते हैं, वो जस्टिफिकेशन आपने देनी होगी कि how this thing caused the dismissal. Clear? Okay. Okay, Lisha? जी बेटा. Is it clear everyone? Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, beta. Next we have सर another. थोड़ा सा ऊपर कर देंगे. अच्छा, ये मैं अगले बंदे पे जाने लगा. चले, ये जल्दी से लिख लें इसको, फिर मैं आगे वाले पर्सन पे जाता हूँ. Then we have the next term of नवाज बेनजीर भुट्टो. बेनजीर भुट्टो की अगली टर्म पे बात करते हैं अब हम. बेटा, नेक्स्ट टर्म ऑफ बेनजीर भुट्टो, ये सेकंड टर्म है बेनजीर भुट्टो की. एक टर्म आप लोग पहले कर चुके हैं. What were the years of first term of Benazir Bhutto? 1988 to 1990. Very good. 1988 to 1990. But after 1993, Benazir Bhutto again won the election and she became prime minister for the second term. She became prime minister for the second term. अब बेनजीर भुट्टो का सेकंड टर्म के अंदर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ सक्सेसफुल वाज बेनजीर भुट्टो, जो कि आने के चांस बहुत थोड़े होते हैं, बट वी हैव टू राइट द सक्सेसेस ऑफ बेनजीर भुट्टो इन द सेकंड टर्म एज वेल. फर्स्ट वी विल राइट द सक्सेसेस. We will start with the successes, and on the other side we need to know the failures. Failures caused dismissal. याद रखिएगा, फेलियर ने किस चीज को कॉज किया? Failures caused dismissal as well. Is it clear everyone? इसी तरह नवाज शरीफ के भी फेलियर्स ने किस चीज को कॉज किया? डिसमिसल को. डन. नाउ वी हैव टू understand few more things, like what were the successes. The first success was Benazir focused on women empowerment. क्या काम किए? Like what were the works she did for the women? Like separate banks, सर पुलिस एकेडमी बनाई थी. police stations, separate police stations. इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर स्कीम्स,
ये जो लेडी हेल्थ वर्कर स्कीम है ना, ये आज भी चल रही है। क्लियर? सो ओवरऑल she worked successfully to empower women. अब कुछ जगहों पे बेटा ये वुमेन एम्पावरमेंट एक दिन में नहीं होती या 2 सालों में नहीं होती। 100% सक्सेस रेशियो तो नहीं था, बट यू कैन से कि 20-30% सक्सेस रेशियो था इसका, बिकॉज वुमेन जो है उनको एक स्पेशल स्टेटस मिल गया, सेपरेटली उनको कुछ राइट्स मिल गए। दैट वाज द ओनली थिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? सेकेंडली, she opened she focused on agricultural reforms. इसने 2 काम किए एग्रीकल्चर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लाइक किसान बैंक वाज ओपन्ड। किसान किसको कहते हैं आप? Farmer. Very good. Kisan Bank was opened for farmers, and National Tractor Scheme was introduced for farmers. National Tractor Scheme. Like, she worked for the betterment of agriculture in Pakistan. Hence, she mechanized agriculture and improved it. Clear बेटा? नेक्स्ट इज, इससे एग्रीकल्चरल जीडीपी भी हमारा बढ़ा। इससे फर्दर आप इसको कर सकते हैं कि मैनी पीपल स्टार्टेड innovation in agriculture. This thing brought development of food security in Pakistan. So you can link anything. मतलब आप इसको enhance कर सकते हैं अपने एंगल से, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना इसको डेवलप करना चाहें, you can easily develop it. Clear? Next, she strengthened Pakistan's foreign policy. She strengthened Pakistan's foreign policy like relations with Afghanistan, Turkey, and USA improved. अब यूएसए के साथ रिलेशन हमारे बड़े टेम्परेरी इंप्रूव हुए थे, ठीक है। रिलेशंस लाइक हिलरी क्लिंटन विजिटेड पाकिस्तान, फर्स्ट लेडी। बेटा बड़ी बात होती है कि आप अमेरिका का फर्स्ट लेडी का आना पाकिस्तान में। हिलरी क्लिंटन visited Pakistan. Clear? So It was did Benazir also go to USA in 96? Yes, beta. Yes, she visited USA first, but later on, Hillary Clinton, the first lady of USA, she visited Pakistan as well. Clear? So hence, it was good step for Pakistan's international status, which was improved because Pakistan. अच्छा, ये हुआ कि हिलरी क्लिंटन जो है ना, इस बेचारी के हाथ में तो कुछ नहीं था। शी विजिटेड पाकिस्तान, शी गेव एड टू पाकिस्तान, बट लेटर ऑन अमेरिका ने फिर दोबारा पाकिस्तान की एड को स्टॉप कर दिया।
ये कुछ टाइम के लिए अमेरिका ने वादा किया कि पाकिस्तान को हम F-16 जेट्स जो हैं वो वापस करेंगे, पाकिस्तान को हम उन्होंने F-16 पैसे ले लिए थे लेकिन दिए नहीं थे। जेट्स हमें दिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया कि हम देंगे आपको। हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में वादा करके गई हम आपको जेट्स देंगे, लेकिन वहां पे जाके उसने दोबारा अमेरिकन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव दैट थिंग। क्लियर? जी बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ we are moving towards failures. बेटा बेनजीर के failures में भी कुछ common points हैं. You people have already written those common points. I'm not explaining them again. Kalashnikov culture, Kalashnikov culture, और इसके साथ क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? मल्टीपल, दूसरा पॉइंट क्या आएगा? Nepotism. ड्रग नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग। इन दोनों से क्या हुआ? व्हाट हैपेंड ड्यू टू दीज टू थिंग्स? लॉ एंड ऑर्डर बिकेम Stability. yes बेटा। सेकेंडली, लॉस ऑफ यूएस एड। लॉस ऑफ यूएस एड से क्या हुआ? ब्रॉट इन्फ्लेशन and depreciation of currency. Clear? जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? पाकिस्तान की करेंसी भी बहुत ज्यादा डीवैल्यू। ये आपको पाकिस्तान की करेंसी सबसे ज्यादा डॉलर का रेट जो हाई गया था वो बेनजीर की सेकंड टर्म में गया था, और बेनजीर के लिए इट वाज डिफिकल्ट टू टैकल दीस कंडीशंस। क्लियर? Next is another important thing, train march plus हड़ताल। हड़ताल किसको बोलते हैं? Can anyone tell? उर्दू का टेस्ट है आपका। Protest. Strike. Protest. स्ट्राइक को बोलते हैं, प्रोटेस्ट को बोलते हैं। वेरी गुड। नवाज started train march from Karachi to Peshawar. हर रेलवे स्टेशन पे नवाज शरीफ ने स्टे किया एंड ही did hate speeches against Benazir Bhutto. So hence he defamed Bhutto, defamed Benazir, which reduced her unpopularity. Reduced her popularity, not unpopularity, which reduced her popularity. तो लोगों को आप बेटा, आप किसी गलत चीज को इतने अच्छे तरीके से झूठ बोल के आप बताएं तो लोगों का ट्रस्ट गेन हो ही जाता है। तो बेनजीर के बारे में यही था कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं बेनजीर के खिलाफ इस ट्रेन मार्च की वजह से हुए थे। सर सेकेंड टर्म के अंदर, यस बेटा। सर ये भी तो था जो मुर्तजा भुट्टो का मर्डर हुआ था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी उस पे आ रहा हूं मैं। फैमिली फ्यूड्स क्या थे? अब मैं फैमिली फ्यूड्स के ऊपर आता हूं। नुसरत भुट्टो मदर थी किसकी? Benazir Bhutto. यस बेटा। नुसरत भुट्टो wanted Mir Murtaza to take over PPP, but her daughter Benazir did not want that. Even Mir Murtaza was killed in Karachi. आपको पता है कराची के अंदर मीर मुर्तजा की मर्डर हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फर्दर
after murder of Mir Murtaza in Karachi, murder of Mir Murtaza in Karachi, there was no investigation. There was cold response by Benazir. अब आप मुझे बताएं, आपकी बहन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो और आपका मर्डर हो जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो तो आपका शक किस पे जाएगा? सर बहन पे ही जाएगा ना, जिसकी टाइम सर, पीरियड लेकिन असल में तो जरदारी ने करवाया था ना। तो जरदारी किसका हस्बैंड था? सर बेनजीर को भी जरदारी नहीं मरवाया था। वो तो बेटा वो तो क्या उसे कहते हैं कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ इट। सर नुसरत भुट्टो तो बेनजीर की मां नहीं थी। नुसरत भुट्टो माँ थी, बिल्कुल माँ थी। नुसरत भुट्टो मदर थी। फिर आप बहन क्यों कह रहे हैं? नहीं, मदर की बात करो ना। बहन प्राइम मिनिस्टर थी, बेनजीर भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर ना। मीर मुर्तजा की बहन कौन थी? हु वाज सिस्टर ऑफ मीर मुर्तजा? ठीक है, समझ आ गई? यस सर। There was cold response which made Benazir unpopular even in PPP. Unpopular even in her own party. इसकी अपनी पार्टी में ही लोग इसके साथ छोड़ गए, तो इससे hence he was easily dismissed by द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फारूक खान लगारी, जो कि पीपल्स पार्टी का ही था। ऑल्दो वो पीपल्स पार्टी का बंदा था, उसने बेनजीर को 8th अमेंडमेंट के जरिए डिसमिस किया, क्योंकि जो फारूक खान लगारी था ना, ही वाज वेरी क्लोज पर्सन ऑफ नुसरत भुट्टो, और नुसरत भुट्टो ने फारूक खान लगारी को कहा था कि बेनजीर को डिसमिस करो आप। अच्छा, फिर उसके बाद है करप्शन ऑफ जरदारी। करप्शन ऑफ जरदारी का टाइटल क्या था? Mr. 10%. यस, ये मिस्टर 10% की इतनी करप्शन इसने की जरदारी ने। ही वाज सो करप्ट कि इसने मिस्टर 10% के नाम से इसको टाइटल मिल गया कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन एवरी इलीगल एक्टिविटी बाय टेकिंग 10% शेयर। दैट वाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, जो कि नवाज शरीफ की, बेनजीर की फर्स्ट टर्म में भी यही इशू था एंड सेकंड टर्म में भी यही प्रॉब्लम था। इज इट क्लियर? Privatization of Bhutto was also failed. Privatization of Benazir failed due to lack of investment. Benazir ने भी अब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया, बट इट फेल्ड, इट कोलैप्स्ड इन पाकिस्तान बिकॉज पैसे ही नहीं थे यूएस की तरफ से। डॉलर जब तक एड नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, आज भी यही होता है ना, जब यूएस एड दे देता है हमें, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाती है। जब यूएस की एड खत्म होती है, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाती है। क्यों आजकल डॉलर इतना ऊपर गया हुआ है? व्हाई द डॉलर रेट्स आर सो हाई? बिकॉज वी डोंट हैव। सिंपल इज दैट। इज इट क्लियर? और लास्ट में इसका प्रॉब्लम क्या था? द लास्ट प्रॉब्लम वाज इशू विथ फारूक खान लगारी। अब इस दफा फारूक खान लगारी who was president अब बेटा फारूक खान लगारी प्रेसिडेंट था। ही यूज्ड 8th amendment and dismissed Benazir over which charges? Over corruption And mismanagement. and mismanagement. जी बेटा, is it clear everyone? Is it clear? So now which two types of questions can be given? Sample question आप एक बता दें। Can anyone make any question? अब आप क्वेश्चन बनाएंगे।
Can anyone make a question statement for this second term of dismissal of सर Benazir? जैसे family feuds were the main reason for Benazir's dismissal. Very good, very good. So for example, मैं इधर लिख देता हूँ privatization in Benazir era was main reason of her dismissal in 1996. Do you agree or disagree? Give reasons. Can anyone make the pattern of this answer? Yes, first paragraph will be for privatization. Okay, failure of second- privatization. First paragraph Yes. would be based on failure of privatization. privatization. Yes, beta. Yes, beta. And then link statement, Hmm. and then family feuds, Okay. and then train march of Nawaz Sharif, Yes, beta. clash in Cove culture, and Yes. drug instability. Yes. Yes, beta. Very good. Why was और 7 marks का क्वेश्चन तो हर एक पे बन सकता है ना. Why was Benazir dismissed in 1996? Why was Benazir dismissed in 1990? Why was Nawaz Sharif dismissed in 1993? So ये dismissal का क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है और 95% क्वेश्चन के चांसेस किस चीज के ऊपर होते हैं? इनके डिसमिसल के ऊपर ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. इज इट क्लियर? जस्ट 5% चांसेस आपको दूसरी चीजों पे मिलते हैं कि लाइक इसके सक्सेस फेलियर पे क्वेश्चन कंबाइंड आ सकता है, नॉट द सेपरेट वन. सेपरेट नहीं आ सकता. ठीक है, बेनजीर की दोनों टर्म्स पे कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है. उसमें आप एक टर्म का सक्सेस 1 लिखते हैं, दूसरी का दूसरा लिखते हैं और फेलियर 3 लिखते हैं. दैट वुड बी सफिशिएंट. इज इट क्लियर एवरीवन? Wait, sir, could you repeat the type of question that can come? These are the questions which are written on the screen. These questions, most of the questions can be given on the dismissal of these people in their terms. But successful questions can be given only on both terms combined, not separately. How successful question can be given only on both terms of Benazir and both terms of Nawaz Sharif separately. Clear? Is it clear? Right? Okay, beta. Next we have another important term and the last term of the person. दूसरी दफा फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बना बेनजीर जब डिसमिस हुई? Nawaz Sharif. नवाज शरीफ बने. वेरी यस बेटा. नवाज शरीफ became prime minister after fresh elections. फ्रेश इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका 1997 में वो बने. 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इसको वो कर दिया. जस्ट बेटा 1 मिनट ठहरिएगा, मैं आपको रिज्वाइन करता हूँ. जी बेटा, I'm back. तो नवाज शरीफ के सेकंड टर्म पे भी बेटा which two types of questions can be given? एक तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, that would be based on how successful. So for how successful question you need to have successes and on the other hand you need to have failures, and failures caused dismissal. Dismissal. Yes beta, failures caused dismissal.
Now come to the first question, first point. Number one, successes of Benazir, Nawaz Sharif. The first one, motorway M2 completed. Motorway M2 completed. M2 completed, which brought revolution in transportation. Revolution in transportation. Is it clear, everyone? Okay, ji. Second biggest success of Nawaz Sharif was end of 8th Amendment. 8th Amendment by introducing 13th Amendment. Beta, whenever we want to या we need a change in the constitution, तो हम उसके अंदर चेंज कैसे ला सकते हैं? एक नई अमेंडमेंट के जरिए. What is the meaning of the word amendment? What is the meaning of the word amendment? Change. Change. Very good. Meaning of the term change है. So he did 8th Amendment. So hence he revived 1973 Constitution in its original form. आपको पता है ना, form which was democratic. Is it clear, beta? He also introduced 14th Amendment. 14th Amendment in which horse trading was banned. Horse trading was banned. हॉर्स ट्रेडिंग हम किस चीज को कहते हैं? कैन सर एनीवन जो मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी स्विच करते हैं, इलेक्शन एक पार्टी से लड़ते हैं और असेंबली में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं. यस, नो पॉलिटिकल पार्टी चेंज आफ्टर इलेक्शंस. इज इट क्लियर? अब ये नहीं हो सकता कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करें. नवाज शरीफ के टाइम पीरियड में बैन लग गया. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि एक बंदा पाकिस्तान का कोई एक अच्छी पोजीशन या कोई एक पॉलिटिशियन है. फॉर इंस्टेंस, आई एम पॉलिटिशियन, आई कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द टिकट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. पीटीआई के टिकट से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूं. मैं देखता हूं कि पीटीआई जो है ये तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बन रही अभी. इलेक्शन तो मैं जीत गया पीटीआई के प्लेटफॉर्म से. लेटर ऑन मैं मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेता हूं. मैं एमएनए किसके टिकट से बना? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली किस पार्टी की बेस पे बना? पीटीआई की बेस पे. और जब मैं असेंबली में गया तो मैंने अपनी एफिलिएशन पीटीआई को छोड़ के नून लीग के साथ कर दी. तो दिस इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग. इस तरह पॉलिटिकल लीडर्स को दूसरी पार्टीज परचेज कर लेती हैं आफ्टर इलेक्शंस. बट इसने कहा कि आफ्टर इलेक्शंस अब पॉलिटिकल पार्टीज बैन है, अब आप नहीं चेंज कर सकते. यस बेटा. सर ये जो अभी 2024 में इलेक्शन हुए थे, इसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उन्होंने मतलब एक ही झंडे का इलेक्शन लड़ा था. चेंज मतलब बाद में फिर दूसरी पार्टी के साथ हो गए. सर तो वो भी तो हॉर्स ट्रेडिंग है ना? हॉर्स ट्रेडिंग है वो भी. सर तो ये बैन नहीं हो गई? बैन इस तरह नहीं, ये पब्लिकली नहीं ना किया उन्होंने. अब ये देखो कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. जो पीटीआई तो बैन थी ना, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं था उन्होंने. दे वर बेसिकली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, किसी पार्टी के मेंबर तो नहीं थे वो. बात हो रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स तो कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं ना. आप देखें कि नून जितने भी पीटीआई के एमएनएस हैं वो इंडिपेंडेंट थे.
दे वर नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। उन्होंने अगर बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो दैट वाज लीगली करेक्ट, लॉ के अंदर ये करेक्ट है, क्योंकि दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी बिफोर दैट। क्लियर? Yes. Next is another important thing, nuclear testing in 1998, and Pakistan became first Muslim nuclear power in the world. Power in the world. इससे फायदा क्या हुआ? What was success in it? Hence, defense of Pakistan improved. Oh my yes. यस बेटा, पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। ऑब्वियसली इंडिया वाज ऑलरेडी ए न्यूक्लियर पावर। इंडिया का जो हमें हर दूसरे दिन इंडिया पाकिस्तान को धमकियां लगाता था कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। आफ्टर दैट इंडिया ने पाकिस्तान को तंग नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान आल्सो बिकेम द न्यूक्लियर पावर एंड इट वाज थॉरोली एक्सेप्टेड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। आज भी पाकिस्तान को कोई अगर कंट्री नहीं हाथ लगाता या अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ इतना पंगा नहीं करता, तो इसके पीछे एक लॉजिक एक ही है कि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द फेलियर्स ऑफ नवाज शरीफ। इसके फेलियर्स बहुत ज्यादा हैं। बैन ऑन मीडिया, इवन मीडिया like journalists were abducted, those who spoke against नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी बंदा अगर टीवी पे आके या न्यूज़पेपर के अंदर बात करता था तो उसको उठा के जेल में सर से नजम सेठी को भी अबडक्ट कर लिया था। जी बेटा, इसकी बड़ी एग्जांपल नजम सेठी है। नजम सेठी इज ए फेमस जर्नलिस्ट। सर अभी तो चमचा है ना नून लीग का। अभी इनका नून लीग का चमचा है, तो लेकिन नजम सेठी ने नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ वर्ड्स बोले और नवाज शरीफ लोगों ने उसको उठा के दिन दिहाड़े जो है वो एबडक्ट किया, अगवा किया और ले गए। हेंस इट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नवाज शरीफ ये जो हरकतें कर रहा था ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अटैक on Supreme Court by Nawaz, allies of Nawaz. Supreme Court by allies of Nawaz. नवाज के allies ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया of when चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को कौन थे बेटा? He was Chief Justice of Pakistan. Yes बेटा, he was Chief Justice of Pakistan. Basically इसको बेनजीर ने अपॉइंट किया था सजाद अली शाह को ना। 1995 में ये चीफ जस्टिस बना था बेनजीर के टाइम पीरियड में। अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट बाय allies of when Chief Justice सजाद अली शाह opened corruption of नवाज शरीफ के केसेस खोल लिए थे। Yes बेटा, corruption cases of नवाज। सर Yes बेटा, सर जब नून लीग वालों ने खुद ही काम किया तो वो फिर पीटीआई को कैसे 9 में के लिए ब्लेम करते हैं? बस देखो ना, ये तो बात है पावर की। जो पावर में होता है माइट इज राइट होता है हमेशा। अच्छा, सो हेंस नवाज became highly unpopular
due to attack on institutions of state. Attack on institutions of Sir, he attacked the institution, yes? His Yes, madam. followers and stuff. Okay. Yes, beta. Institutions of state. So Nawaz became highly unpopular due to attack on institutions of state. Like जुडिशरी के ऊपर अटैक किया था. बेटा आप ये देखें कि इसका मतलब है कि अगर नवाज शरीफ करप्शन करेगा और जुडिशरी उसके ऊपर केस ओपन करेगी तो नवाज शरीफ उस जुडिशरी को खत्म कर देगा. तो इट मींस कि he was taking law in his hands. That was the biggest problem in his time period. Is it clear, everyone? Another issue was trade embargo on Pakistan after nuclear testing made economy of Pakistan worst. Nuclear testing made economy of Pakistan worst. Beta, Pakistan was already on verge of decline. So Pakistan की economy और ज़्यादा collapse कर गई. Clear? When trade barriers were imposed, इससे पाकिस्तान में unemployment, inflation, Pakistan में there are multiple problems after that, and Pakistan's economic conditions became deplorable. Hence, economic conditions in Pakistan became worst. जी बेटा, is it clear to all of you? Now we have the points. बेटा ये points आपने याद रखने separately. नवाज शरीफ के आर्मी के साथ issues क्या थे? I'm just highlighting those issues. Clear? अच्छा, in the second term of Nawaz Sharif changed the army chief. Let me just tell you, ये जो last 3 reasons हैं, I'm just showing you these 3 reasons. जब आप notes खुद भी पढ़ेंगे तो it would be easy for you to understand later on. नवाज शरीफ की सेकेंड टर्म के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि फेलियर्स जो हैं, these failures caused imposition of martial law. This question can be given in your exam. ये notes के अंदर ना बेटा 163 पेज पे है. This is the most important question, ये आपने याद रखना है. Is it clear बेटा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी देता हूं तो आपने इसको जो है वो याद रखना है. ये अब मैं 3 रीजंस लिखने लगा हूं. नवाज डिसमिस्ड आर्मी चीफ जहांगीर करामत. नवाज शरीफ ने किसको डिसमिस किया? जहांगीर करामत को. Who asked Nawaz to include in National Security Council. National Security Council, yes. National Security Council. Dismissal of army chief brought hatred against Nawaz in army. Dismissal of army chief made relations of Nawaz and army poor. Is it clear, everyone?
किसकी वजह से, कौन से इशू की वजह से आर्मी और नवाज शरीफ में रिलेशंस पुअर हुए? ड्यू टू डिसमिसल ऑफ आर्मी चीफ. New army chief was Pervez Musharraf, which was appointed by Nawaz Sharif. Musharraf was appointed by Nawaz, but problem started between them after कारगिल वॉर. बेटा कारगिल कहां पे है? वेयर इज कारगिल लोकेटेड? Sir, North इंडियन Pak- कश्मीर. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है. कारगिल इज a village which is located in Indian occupied कश्मीर. क्लियर? पाकिस्तान के गुरिल्ला फोर्सेस वहां पे गए, पाकिस्तान की तरफ से मुजाहिदीन ने उस पर अटैक कर दिया, इंडिया ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हो गई. ठीक है. सो हाउएवर नवाज stated on international media that he was unaware of war. मतलब पाकिस्तान के कोई 300-400 फौजियों की शहादत हो गई और उसके बाद नवाज शरीफ ने टेलीविजन पे आके बोला कि मुझे तो वॉर का पता ही नहीं है. तो इससे हेंस मुशर्रफ एंड नवाज had conflict after this war. This statement. Is it clear? Which caused his dismissal. Clear? And finally, सर आप मुझे नीचे कर सकते हैं? जी बेटा, ये फिर इसके बाद लास्ट में देयर वाज अनदर मेजर इशू. द लास्ट इशू वाज कि नवाज डिसमिस्ड मुशर्रफ. नवाज ने मुशर्रफ को भी डिसमिस कर दिया बेटा. नवाज ने क्या किया? he dismissed Musharraf when he was on his official visit to Sri Lanka. When he was on his official visit to Sri Lanka. बेटा जब वो श्रीलंका के ऑफिशियल विजिट पे था, नवाज डिसमिस्ड हिम एंड ज़ियाउद्दीन बट वाज अपॉइंटेड न्यू आर्मी चीफ. ज़ियाउद्दीन ये आईएसआई का चीफ था, इसको बट को was appointed as new army chief. अब when Musharraf came back, इसके प्लेन को जो है वो लैंड नहीं करने दिया. when Musharraf came back, ये देखो ऐसा सस्पेंस चल रहा. Musharraf came back, Nawaz did not allow him to land. Air Force took control of Karachi airport. Air Force
took control of Karachi Airport, Karachi Airport, Airport, when Musharraf landed, when Musharraf landed, he imposed martial law. जी बेटा, is it clear? Sir, isn't someone supposed to invite the military to impose martial law? Yes बेटा, obviously government invite army to impose martial law, but this time Musharraf forcefully imposed the martial law and he basically dismissed Nawaz Sharif on plane hijacking case. कौन से केस पे नवाज शरीफ को डिसमिस किया गया? प्लेन हाईजैकिंग केस के ऊपर. तो ये बेटा जो लास्ट में 3 ग्रीन कलर्स में मैंने पॉइंट लिखे हैं, all these 3 points in green color, these 3 points are causes of dismissal and causes of martial law. ये ग्रीन कलर के पॉइंट्स के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है? व्हाई डिड मुशर्रफ इम्पोज मार्शल लॉ? ये ग्रीन कलर के पॉइंट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? सिंपल क्वेश्चन कैन बी व्हाई डिड मुशर्रफ व्हाई डिड मुशर्रफ impose martial law? Impose martial law. So ये जो last 3 points हैं बेटा, these 3 points can be given for 7 marks question separately. तो second term पे basically नवाज शरीफ का जो second term है ना, on the second term the only question which is very very famous, that is imposition of Musharraf's martial law. जी बेटा, यहाँ तक आज हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर 15 basically. I wanted to finish that chapter, so we are done with that. Is there any question? Anyone? सर ये जो फारूक अहमद था इसकी वजह से क्यों थे बेनजीर के